Thanks a lot for that wonderful introduction. I hope everybody is able to hear my audio. Everybody's able to hear me, right? Yes, Okay. yes. Is it possible for me to share the screen? I'll just quickly share the screen here. Right. So I'll just quickly run you through some of the entrance examinations which are available for the commerce students. And once the entrance examinations are available for the, once we go through this, I'll particularly focus on the CLAT, and also we'll take a look at the other entrance examinations on how to crack some of these entrance examinations. Okay, is my screen, is that PPT visible there? Can I just have a quick confirmation of that? Yes, it is perfectly visible, sir. That the G2 Ahmedabad chapter thingy, right? Yes. Okay, yes. Sure. So, like we know that immediately after completing standard 10th, there are 4 possible options that students can go for, right? I believe science has already been tackled, A and B. And we also have the commerce students with accounts, stats, economics or business studies, and arts and humanities students with history, geography, political science, sociology, psychology, and other optional subjects which are available to them. So for arts and humanities, I'm just initially just going to run you through some of the entrance examinations of what are the degrees which are available. And then I'll focus on some of these entrance examinations, especially law as a career, and then take questions on that. So for arts and humanities students first, and these are not just limited to arts students, in fact, even commerce students can opt for these. So some of the prestigious entrance examinations include the Humanities and Social Sciences exam conducted by IIT Madras. Now, a lot of students are under the impression that IITs are engineering colleges और इसमें सिर्फ engineering के लिए जाते हैं या सिर्फ science student जाते हैं. But a lot of IITs, they offer management programs, they offer BSc programs, they even offer BA programs. So arts and humanities के काफी students भी IITs में जा सकते हैं. So one of the premier entrance examinations is the HSEE, then Tata Institute of Social Sciences TISS, Delhi University, Christ University, Aligarh Muslim University, Ahmedabad, Gujarat की बात करें तो PDPU and KU. These are various colleges which offer a plethora of entrance examinations जो arts and humanities students के लिए particularly quite useful रह सकते हैं. So under these things, you can talk about getting a BA, a bachelor in arts, right? Which could be in specializations, which is common for arts and humanities students, like applied psychology or archaeology, education. I'm not going to read out, right? ये सारा information आपको net पे मिल जाएगा. So one एक standard जो BA है, जो कई students 12th के बाद 12th के बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, वही प्रोग्राम्स काफी नेशनली रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स में किया जा सकता है, which is that the entrance is through competitive entrance exams. So instead of doing just 12 के बेसिस पे from a local college, you can do a BA degree from a nationally renowned college जहां पे एंट्री आपको किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम के बतौर मिलेगी. Similarly, you can have a bachelor's in rural studies. You can go for bachelor of elementary education. जैसे लोग B.Ed के बारे में जानते हैं कि bachelor's in education, but education is huge, right? अगर हम बेसिक्स की बात करें तो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए एक स्पेसिफिक डिग्री अवेलेबल है विच इज BL in Ed. उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट विच कॉमर्स स्टूडेंट्स जनरली प्रेफर करते हैं, लेकिन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए भी बिल्कुल ओपन है, राइट? सो IIMs, अब लोग ये मानते हैं कि IIMs के अंदर जनरली ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हम बैचलर्स के लिए जा सकते हैं, बट अभी 2 ऐसे IIMs हैं, IIM इंदौर और IIM रोहतक, जो 12th स्टैंडर्ड के बाद 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करते हैं, राइट? इट्स कॉल्ड IPM80, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, और उसका एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है. सो IIM इंदौर एंड IIM रोहतक जो IPM80 कंडक्ट करता है, वहां पे आप 5 साल का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हो. सिमिलरली Narsee Monjee इन मुंबई, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी इन महाराष्ट्र, दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट, भारतीय विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, इंद्रप्रस्थ इन दिल्ली, यहाँ पे सारे जितने भी बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं. सिमिलरली 12th के बेसिस पे भी अहमदाबाद एंड गुजरात के कॉलेजेस में आपको BBA प्लस MBA या प्योर BBA का एडमिशन मिल सकता है. ऑन दी अदर हैंड, देयर आर नेशनल लेवल कॉलेजेस जिसमें या तो आप 3 साल का BBA कर सकते हो या 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट का कर सकते हो, जो आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जा सकते हो, राइट? सो द डिग्रीज विच आर अवेलेबल, कोई उसको BBA कहता है, महाराष्ट्र साइड देखें तो इट्स मोर पॉपुलर बाय द नेम ऑफ BMS, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, या BBS, एंड इंटीग्रेटेड BBA MBA के नाम से भी 5 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं. कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो BCom करना चाहते हैं, अब कई स्टूडेंट्स तो लोकल 12th के बेसिस पे लोकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, लेकिन देयर आर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स लाइक Narsee Monjee, क्राइस्ट, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, PDPU अपना गांधीनगर वाला, जो BCom की ही डिग्री ऑफर करते हैं, लेकिन अगेन द एडमिशन इज थ्रू एन एंट्रेंस एग्जाम. सो उनके अपने अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होंगे, जैसे Narsee Monjee का खुद का एग्जाम है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लेता है,
पीडीपीयू खुद अपने 4 साल इंटीग्रेटेड बीकॉम प्लस लिबरल स्टडीज डिप्लोमा के लिए पीडीपीयू एडमिशन टेस्ट लेता है. सो इवन फॉर अ स्टैंडर्ड बीकॉम इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ 12th के बेसिस पे ही लोकल कॉलेजेस में एडमिशन लो. देयर आर ब्रिलियंट कॉलेजेस ऑफ नेशनल लेवल जहां पे थ्रू एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप जा सकते हो. Right? So these are the various degrees which are available. Right? It could be a simple BCom, which is the professional degree, or a specific BCom of sports management, or a BCom with computer sciences, BSc in finance and IT with CS, or BCom with law, that is LLB. So these are some of the BCom and related options which students can go in for. उसके बाद जैसे सर ने ऑलरेडी पिछले सेशन में बताया है, और अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जो किया जा सकता है. Now, कंप्यूटर एप्लीकेशंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड. कई लोग ये मानते हैं कि कंप्यूटर्स में जाने के लिए आपको एक साइंस बैकग्राउंड की जरूरत है. वेल, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो ही कंप्यूटर में जा. एंड कई लोग ये मानते हैं कि अगर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है या कोडिंग करना है, एप्लीकेशन डिजाइनिंग करना है, तो मुझे सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना पड़ेगा. वेल, इंजीनियरिंग इज नॉट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और डेवलपमेंट. इंजीनियरिंग करके आप अलग फील्ड में जाते हो. लेकिन अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो ऐसी सारी चीजों के लिए यू नीड टू डू अ कोर्स ऑफ बीसीए प्लस एमसीए और अ बीएससी प्लस एमएससी इन आईटी. एंड इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए यू नीड नॉट बी कंपल्सरीली अ साइंस स्टूडेंट. इवन कॉमर्स एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए भी देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया जो एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू आपको एडमिशन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, यूगैट जो एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कंडक्ट करता है. ये खुद कई कॉलेजेस में एडमिशन के लिए यूगैट कंडक्ट करता है. राइट? देन देयर इज द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ भारतीय विद्यापीठ एंड सो ऑन. सो कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, अगर आपका एकेडमिक स्ट्रेंथ डिसेंटली हाई है, आप में रीजनिंग स्किल्स है, आप मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा नहीं कतराते, बेसिक मैथ्स का आपका फंडा अच्छा है, सो अगर बेसिक मैथ्स एंड रीजनिंग स्किल्स आपके अच्छे हों, then computer or software development is absolutely open. It is not restricted to only science students. People of commerce, people from arts and humanities with a reasoning bent of mind can absolutely get into this. Then other than, so either you can go in for a BCA or a BBA IT, BCom in computer sciences or a BSc IT, so on and so forth. हजार से courses available हैं. इनका detailed information आप net पे देख सकते हो. Now, design, I'm sure you must have got information before, right? Design, again, I'm not going to talk much about, but it is definitely a career option for both commerce and humanities students also, based on eligibility criteria. And these are some of the different degree options available, right? Not just a BDes or a BA or a BSc, but even a BF Tech, that is a bachelor's in fashion technology, or a BID or a BFA. ये सारे fashion and designing के related courses हैं जहां पे arts and humanities plus commerce students जा सकते हैं. Okay. Now, economics as a subject has two areas. Either you are interested in the theoretical part of economics, right, which is more of theory based, where arts and humanities students can excel, or it could be the numerical part of economics, which is sometimes also referred to as econometrics, which is great for commerce students who had math as a subject. So even for doing a course in economics, you can go through entrance examinations of institutes like Nasi Monji, Symbiosis, AMU, that is Aligarh Muslim University, Jamia Millia Islamia, Banaras Hindu University, and so on. तो इवन फॉर एन इकोनॉमिक्स डिग्री आप सिलेक्ट कर सकते हो कि क्या मुझे थियोरेटिकल बीए विद इकोनॉमिक्स में जाना है, और डू आई वांट टू गो इन फॉर समथिंग न्यूमेरिकल लाइक बीएससी विद इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स अगेन अ ग्रेट ऑप्शन फॉर बोथ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स, राइट? एंड सम ऑफ द डिग्री ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल अंडर द ब्रांड ऑफ इकोनॉमिक्स. नाउ, hotel management is a very, very interesting course which is open for students of all streams. एक जमाना था जब हम सोचते थे कि अगर होटल मैनेजमेंट करना है यानी कि बावर्ची की नौकरी है, दिन भर खाना पकाते रहो. बट होटल मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट होटल्स और रेस्टोरेंट्स और थिंग्स लाइक दैट. इनफैक्ट पूरा सर्विस सेक्टर जो है, बड़ी बड़ी कंपनीज जिनको अपने खुद के वर्क स्टाफ को देखना है, वो खुद होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को लेते हैं, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर एक्सपर्ट इन हैंडलिंग दिस सर्विस एस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस. तो चाहे आप कंपनीज लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की भी बात करो, तो वहां पे भी दे हायर होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स टू टेक केयर ऑफ देयर इंटरनल ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स. अगेन एट अ नेशनल लेवल देयर आर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लाइक जेडब्ल्यू, जैसे आईआईटीज के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, वैसे ही नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है, which is for all the hotel management that is state and center sponsored colleges in India. फिर बड़े ग्रुप्स लाइक ताज, वेलकम ग्रुप, आईटीसी,
राइट, ओबरॉयस, इन सब का अपना अपना किसी न किसी कॉलेज के साथ टाई अप है, और ये भी अपने एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं टू गिव एडमिशन टू स्टूडेंट्स हु वांट टू गेट इनटू द फील्ड ऑफ होटल मैनेजमेंट, व्हिच कुड इंक्लूड कुकिंग, culinary arts, it could include front office management, it could include back office management, it could include food and beverages. So जरूरी नहीं कि आप खाना पकाने में इंटरेस्ट रखते हो तो ही आप होटल मैनेजमेंट में जाओ। एंड इनफैक्ट कई लोगों को एक ये डर रहता है कि अगर मुझे खाना पकाने में तो इंटरेस्ट है, लेकिन होटल मैनेजमेंट के कोर्स में मुझे नॉन वेजिटेरियन फूड हैंडल करना पड़ेगा, एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. So now, luckily, there are many good top-level colleges in India which have started introducing pure vegetarian courses, right? So for religious or cultural reasons, अगर आप non-vegetarian food से परहेज रखते हो, you can still get into it and do a course of culinary arts with a pure vegetarian background. चलो, इसको so some of the degrees which are available, you get BSc courses, you get BA courses, you get BBA courses, all of this in the field of hotel management. चलो, मेन बात जहां पे बात करनी थी, लॉ. अब लॉ का मतलब ये नहीं है कि काला कोट पहनो और कोर्ट कटघरे में मुल्जिम के सामने खड़े होकर मिलो और दफा 300 दो, मिलो और दफा 400 दो. Less than 15% of students actually go and fight cases in the courts, right? माँ बाप को कई बार ये डर लगता है कि अगर लॉयर बन गया तो क्रिमिनल्स के साथ उठना बैठना होगा, तो कैसी जिंदगी होगी. Less than 15% of the candidates of law who graduate actually कोर्ट्स में लड़ते हैं. यहां पे ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो कॉर्पोरेट जॉब्स प्रेफर करते हैं. बड़ी बड़ी कंपनीज खुद का लीगल डिपार्टमेंट रखती हैं, राइट? इवन कंपनीज विच आर नॉट लॉ फर्म्स बट कंपनीज लाइक अदानी एंड टोरेंट एंड इन्फोसिस एंड इवन बिग बैंक्स, इनको अपने अपने लीगल डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है. एंड द पे स्केल्स आर एक्सेलेंट, राइट? 4 to 6 lakhs per year is a basic pay, and easily उसके beyond भी फिगर जाता है as you go ahead in the organizations. So लॉ के अंदर द बेस्ट पार्ट, आपको पहले से कोई स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम देके जब आप किसी लॉ स्कूल में एडमिशन आप लेते हो, द थिंग दैट हैपेंस इज आपको पहले 2, 2.5, 3 साल तक सारे बेसिक लॉज का आइडिया दिया जाता है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट लॉज, पर्सनल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, राइट, बैंकिंग रिलेटेड लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज, ह्यूमन रिसोर्सेज, आईपीआर, इन सब का बेसिक नॉलेज आपको दिया जाएगा. और उसके बाद वंस यू नो कि अलग अलग लॉज में क्या आता है, 3rd, 4th, 5th ईयर में जाके आप सिलेक्ट करो आप किस एरिया में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो. तो उन सब्जेक्ट को मेजर सब्जेक्ट्स की तरह आप लॉ स्कूल में सिलेक्ट करोगे, एंड उसके बाद आप एक बेसिक ग्रेजुएट करते हो, एंड देन यू गेट टू स्पेशलाइज इन योर एरिया ऑफ प्रेफरेंस. नाउ द बेस्ट पार्ट इज दिस लॉ फील्ड इज ओपन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल एरियाज, राइट? साइंस के स्टूडेंट्स भी इसमें आते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी इसमें आते हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स भी इसके अंदर आते हैं. एंड नाउ जिस तरह इंजीनियरिंग के लिए IIT, मेडिसिन के लिए नीट बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, वैसे ही लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, बहुत फेमस हो चुका है. जो एक 5-6 हजार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देते थे, वो अब साल दर साल 60-70,000 प्लस स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं. एंड कॉमन लॉ एडमिशन के थ्रू आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है. इवन प्राइवेट कॉलेजेस लाइक नारसी मोहनजी एंड निर्मा यूनिवर्सिटी क्लैट के स्कोर पे आपको एडमिशन देगा. उसके अलावा कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो अपना एंट्रेंस एग्जाम्स लेती हैं, जैसे सिम्बायोसिस खुद का स्लैट लेती है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस एग्जाम है, राइट? सो ऑल दीज यूनिवर्सिटीज में जो 5 साल इंटीग्रेटेड लॉ का कोर्स है, वो आप 12th स्टैंडर्ड के बाद क्लियर करके एडमिशन ले सकते हो. एट द एंड ऑफ द 5th ईयर आपको 2 डिग्रीज साथ में मिलती हैं, 2 अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज. इट कुड बी BA प्लस एन LLB, BBA प्लस एन LLB, या BCom, BSc, BSW, दैट इज बैचलर्स इन सोशल वर्क, या BTech. इन सब बेसिक बैचलर्स डिग्री के साथ साथ आपको LLB की डिग्री मिलती है. सो 5 साल के एंड में आप डबल ग्रेजुएट होके पास आउट करते हो. नाउ लिबरल स्टडीज इज अ रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया. ये वेस्ट में काफी प्रेवलेंट कई सालों से रहा है. कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अलग अलग सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन पढ़ना है, जो एक ट्रेडिशनल कोर्स शायद ऑफर ना करे. कोई स्टूडेंट अगर लैंग्वेजेस के साथ म्यूजिक हिस्ट्री के साथ परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ एक फॉरेन लैंग्वेज के साथ बेसिक फिजिक्स पढ़ना चाहे, आज तक शायद कुछ सालों पहले तक कोई ऐसा कोर्स नहीं जहां पे वो ऐसा एक ऑड कॉम्बिनेशन ले सके. बट नाउ देयर आर कॉलेजेस जो लिबरल स्टडीज का जनरली 4 साल का कोर्स ऑफर करती है, जिसके अंदर 2 साल के बाद आपको रिमेनिंग 3rd and 4th ईयर में खुद के चॉइस के सब्जेक्ट्स चूज करने का मौका दिया जाता है.
सो थर्ड फोर्थ ईयर में 200 में से 200 प्लस सब्जेक्ट्स में से आप चूज कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन लेकर आपको आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है. सम ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इंक्लूड फ्लेम यूनिवर्सिटी इन पुणे. गुजरात की बात करूं तो पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी पीडीपीयू एंड कर्नावती, दे ऑफर दीज प्रोग्राम्स. नॉर्थ की बात करूं देन देयर आर कॉलेजेस लाइक जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड अशोका यूनिवर्सिटी, राइट. सो एक गिने चुने कुछ 10-12 ऐसे कॉलेजेस हैं जो लिबरल स्टडीज का 4 साल का कोर्स आपको ऑफर करती है, जहां पे कीजिए आपको कौन से एरियाज में से सिलेक्ट करना है और किस तरह से आपका कोर्स करिकुलम डिसाइड करके जनरेट करके आगे बढ़ना है, राइट. सो इट कुड बी अ बीए ऑनर्स, अ बीबीए ऑनर्स, अ बीकॉम और अ बीएससी. जैसे स्क्रीन पे देखेंगे ये सारे फील्ड्स को कवर करता है. इट इज नॉट स्ट्रीम स्पेसिफिक. नाउ जिन बच्चों को मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, एडवर्टीजमेंट ऐसे एरियाज में जाना है, उनके लिए भी कॉलेजेस एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय देम लाइक Xavier's, Symbiosis, all colleges of mass communication in Maharashtra, Delhi University, right, so on and so forth. मास कम्युनिकेशन के अंदर अगर थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी रखता है स्टूडेंट, लैंग्वेजेस में अगर इंटरेस्ट है, राइट, लोगों से बात करने में इंटरेस्ट है, नई चीजों के बारे में जानने में अगर इंटरेस्ट है, then it becomes one of the best options to get into, right? And similarly, you can get degrees like a BA in journalism or a bachelor's in mass communication or mass media and so on and so forth. चलो, परफॉर्मिंग आर्ट्स, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है, एक्टिंग में इंटरेस्ट है, then there are specific degrees available even for these performing arts. Colleges like MS University in Baroda, Christ University and Banaras Hindu University, ये अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू स्टूडेंट्स को परफॉर्मिंग आर्ट्स डिग्री के लिए एडमिशन देते हैं, जहां पे यू गेट अ बैचलर्स इन डांस और अ बैचलर्स इन म्यूजिक और अ बीए ऑनर्स विद डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस और अ बैचलर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब स्पोर्ट्स में भी आप स्पेशलाइजेशन करके डिग्री हासिल कर सकते हो, राइट. एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लाइक SMAT, WTPFT, राइट, अलग अलग एग्जाम्स हैं, बट ये एग्जाम्स के थ्रू अगर आप जाना चाहते हो देन यू कैन वेरी वेल गेट अ डिग्री ऑफ BA, BBA, BCom और BSc और स्पेसिफिकली बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, इन स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन. So these are valid bachelor's degree recognized by the government authorities, right? UGC, AICT जैसी जो बॉडीज हैं, ये ऑफिशियली ऐसे डिग्रीज को भी रिकॉग्नाइज करती हैं. अब इंडिया में कई लोग हैं जो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में जाएं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में अपना करियर बनाएं, बट दे आर जनरली नॉट अवेयर, इज इट पॉसिबल टू गेट अ बैचलर्स डिग्री डायरेक्टली इन दिस फील्ड? एंड द आंसर इज यस. थोड़ा भी अगर आप नेट पे सर्च करें आपको मिल जाएगा. ऐसे कई सारे ब्रिलियंट कॉलेजेस हैं पैन इंडिया जो आपको एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू या 12th के एग्जाम के बेसिस के ऊपर एडमिशन देंगे एंड यू कैन गेट अ वेरी स्पेसिफिक बैचलर्स डिग्री फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ योर्स. चलो, एंट्रेंस एग्जाम्स वाज व्हाट आई एम सपोज टू बी टॉकिंग अबाउट, राइट. सो ये जितने भी कोर्सेज की मैंने बात की जहां पे कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा, द बेस्ट पार्ट, सबके एंट्रेंस एग्जाम्स मोस्टली सिमिलर होते हैं. तो अगर आप लॉ या बिजनेस मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन या होटल मैनेजमेंट का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, योर प्रिपरेशन फॉर प्रैक्टिकली ऑल दीज एग्जामिनेशंस विल मोर और लेस बी द सेम. So there are 4 areas of general aptitude जो इसमें कवर होता है. एक बेसिक इंग्लिश, सेकंड आपका बेसिक रीजनिंग स्किल्स जिसको हम लॉजिक कहते हैं, थर्ड 8th, 9th या 10th स्टैंडर्ड तक जो भी मैथ्स आपने पढ़ा है, बिकॉज ये किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रीम के लिए रिलेटेड नहीं है, सारे स्ट्रीम्स के बच्चे इसमें अपियर हो सकते हैं, तो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक का मैथ सबके लिए कॉमन रहता है. सो 8th, 9th, 10th में जितना बेसिक मैथमेटिक्स आपने किया है वो, एंड फाइनली जीके एंड करंट अफेयर्स. तो चाहे मैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट की बात करूं या मैं बिजनेस मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट बात करूं, मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, लिबरल स्टडीज, जितने भी ये सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे उन सब के अंदर मोर और लेस ये 4 चीजें ही पूछी जाएंगी, राइट. इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके करंट अफेयर्स. एंड फिर एग्जाम स्पेसिफिक एक आध सेक्शन हो सकता है, जैसे अगर कोई एग्जाम इज फॉर मास कम्युनिकेशन और लिबरल स्टडीज तो शायद एक क्रिएटिव एप्टीट्यूड पूछ लें, कितना आप अच्छा लिख सकते हो क्रिएटिवली. होटल मैनेजमेंट के लिए सर्विस एप्टीट्यूड का एक सेक्शन होगा विच इज आपका जनरल लोगों के साथ डील करने का तौर तरीका कैसा है, राइट. या लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर लीगल एप्टीट्यूड, जिसमें ये नहीं पूछा जाता कि आप लॉ कितना जानते हो, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि क्या आप एक
लॉ लीगल माइंडसेट के साथ सोचने की क्षमता रखते हो. इट्स नॉट अबाउट नोइंग द लॉ, इट्स मोर ऑफ रीजनिंग एंड लैंग्वेज, राइट? देन डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स में ऑब्वियसली डिजाइन एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा. सो दीज आर सम ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम थिंग्स. अब ये सारे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उनकी तैयारी के लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि इट डज नॉट मैटर आप कौन से स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बट आप 2-3 चीजें आज से अगर करना चालू करोगे, यू विल बी वेरी वेल इक्विप्ड टू क्रैक एनी ऑफ दीज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट्स. The first and most important skill that you must have is the ability to read. जितनी जल्दी आप किसी चीज को पढ़ के समझ लोगे, उतना ज्यादा टाइम बचेगा, उतना ज्यादा टाइम सॉल्व करने को मिलेगा. एंड नॉट जस्ट फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स, ये आपके स्कूल एग्जाम्स में भी सही है कि अगर आप पढ़ने में कम टाइम लगाओगे, क्वेश्चन फटाफट पढ़ लेते हो, तो सॉल्व करने में ज्यादा टाइम मिलेगा. सो रीडिंग की आदत डालो, राइट? न्यूज़पेपर्स, नॉवेल्स, मैगजीन्स, स्टोरी बुक्स, कुछ भी, बट यू शुड हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग. इससे ना सिर्फ आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ती है, आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर, ये सारी चीजें इंप्रूव होंगी. बेसिक कैलकुलेशन ओरली करना सीखो. आजकल बच्चों को देखता हूं, सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मोबाइल पे कैलकुलेटर खोलेंगे. आदत डाल लो. कोई पूछे 25 3s आर कितना है, कैलकुलेटर के बिना 75 आंसर आना चाहिए. तो इसके लिए जो हम बचपन से सीखते थे, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, ये सब याद करना चालू करो. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, न्यूज देखना चालू करो. जितना जीके एंड करंट अफेयर्स के बारे में आप जानोगे, उतना ज्यादा आप एंट्रेंस एग्जाम्स प्लस उसके बाद के इंटरव्यू में परफॉर्म कर पाओगे, राइट? सो ये 3 चीजें कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का महामंत्र है. फर्स्ट, अगर आप अपनी रीडिंग स्पीड इंप्रूव करते हो. सेकंड, बेसिक कैलकुलेशंस में आप अपना स्पीड डेवलप करते हो. एंड थर्ड, अगर जीके एंड करंट अफेयर्स आप रेगुलरली फॉलो करते हो, तो जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जितने भी कोर्सेज के बारे में मैंने बात किया है, इन सबको क्रैक करना विल बी चाइल्ड्स प्ले फॉर यू, राइट? So the syllabus for most of these examinations are not so intensive. जैसे इंजीनियरिंग या मेडिसिन के लिए हम देखते हैं कि बच्चे प्राइमरी खत्म होने के बाद हाई स्कूल में आते ही 8th-9th में चालू कर देते हैं. ये जितने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट्स हैं, इनके लिए प्रिपरेशन के लिए 1 साल तो बहुत काफी है. कुछ लोग 11th में स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग 12th स्टार्ट करने के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं. ये सारे एग्जाम्स जनरली अप्रैल एंड से मई के महीने में कंडक्ट होते हैं. ऑफ कोर्स नॉट दिस ईयर, ऑब्वियसली फॉर कोविड रीजंस, लेकिन जनरली नॉर्मली जब मार्च मिड में आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद 1-1.5 महीने का टाइम मिलता है. अप्रैल एंड और मई में जाके ये सारे एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं. और एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होने के बाद मई एंड तक जब रिजल्ट आता है, तो जून एंड जुलाई बिगिनिंग तक कॉलेजेस बिगिन हो जाते हैं. इन सबके एप्लीकेशन फॉर्म्स दैट उस साल के जनवरी महीने में जनरली ओपन हो जाती हैं, राइट? सो एंट्रेंस एग्जाम्स विच आर जनरल एप्टीट्यूड एंड विच आर कॉमन फॉर commerce, humanities and arts students are very simple to prepare for. A lot of this information is already available freely on the internet. All you have to do is go and search and you will definitely get a lot of good pages जहां पे आपको बताएंगे. Also online बहुत सारे free resources available हैं, right? So free में आपको कई सारे ऐसा मटेरियल मिल जाएगा जिससे आप ये सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी भी कर सकते हो, right? Okay, so that was pretty much what I had to say. I hope I am not overshooting time. If there are any questions which anybody wants to ask regarding any of these exams or any of these entrance preparations, then I'm here to answer. Thank you so much, sir. We are perfectly on time with the questions, and we have some questions already. Yes. So the first question is 3-year LLB or 5-year LLB. What is the difference and what is a better option? Okay. This is a very standard question जो लोग पूछते हैं कि पहले जो होता था 3 साल का LLB होता था एंड अभी 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB है, फर्क क्या है? ओके, 3-year LLB जो पहले किया जाता था दैट जनरली वाज नॉट आफ्टर स्टैंडर्ड 12, उसको ग्रेजुएशन के बाद करते हैं. और इंडिया में रूल ये है कि बेसिक ग्रेजुएशन मिनिमम 3 साल का होना चाहिए. 3 साल से कम आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते. सो अगर मैं 3 साल LLB की बात करूं तो मिनिमम मैंने 3 साल ग्रेजुएशन किया और 3 साल LLB किया, यानी टोटल 6 साल. और 6 साल में से 3 साल मैंने जो बेसिक ग्रेजुएशन में किया है, उसमें मैंने लॉ की कोई स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं की है. सो इफ आई अल्टीमेटली वांट टू बी अ लॉयर, तो मेरे लॉ की पढ़ाई जो मेरा 6 साल का ग्रेजुएशन में टाइम निकला, उसमें से सिर्फ 3 साल के लिए किया. ऑन दी अदर हैंड 5-year इंटीग्रेटेड LLB, बिकॉज इट इज इंटीग्रेटेड, 5 साल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोमेटिकली 1 साल आप बचा लेते हो. एंड सेकेंड, योर लॉ कोर्स, योर स्टडी स्टार्ट राइट फ्रॉम year 1.
सो जो 3 साल में LLB में आपने पैक कर दिया है वो अभी 5 साल में एक्सटेंड हुआ है. सो यू गेट मोर एक्सपोजर टू द सब्जेक्ट्स, यू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटर्नशिप्स. एंड जो LLB के अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट स्टेट स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटीज में चलते हैं, दे आर नाइस. बट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो हैं, विच आर द मोस्ट रेप्यूटेड वंस, दे आर ऑल ऑफरिंग द 5-year इंटीग्रेटेड. सो 5-year इंटीग्रेटेड जब आप किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लेट अस से NLS बैंगलोर या नालसर हैदराबाद से करते हो, तो ऑटोमेटिकली एक टैग मिल जाता है, राइट? आप कहो आई एम एन इंजीनियर फ्रॉम अ लोकल इंस्टीट्यूट वर्सेस आई एम एन इंजीनियर फ्रॉम एन IIT. The same thing. I'm a 3-year LLB from a decently good university, or I'm a 5-year integrated LLB from a national university. So tag का फर्क पड़ता है. But the biggest difference is obviously you save 1 year plus your education of law is extended for 5 years. So those are the fundamental differences. Okay. Thank you so much, sir. Another question in this regard is about CS and LLB. Okay. So how is it a good option for a legal education and legal field? Is it a good option to have a CS degree or a LLB degree, or is it a wise decision to do both for legal jobs? Okay. See, again, it depends on what type of law you're. अगर legal job में आप कैसे legal job की बात कर रहे हो? Are you talking about getting into finance and related things? If you're wanting to get into that sector, corporate sector में finance and other things related job आप करना चाहते हो, तो ठीक है, a degree like a CA or a CFA. या अगर आप company related things but not other aspects of law, basically corporate law में जाना चाहते हो, then a CS with a law is a great combination. But law के अंदर अगर कोई कहता है कि I want to get into criminal law or I want to get into constitutional law, तो उन सब चीजों में obviously CS is not going to help. But if you want to get into corporate law, then कहते हैं one of the deadliest combination is getting an LLB plus getting a CS or a CA. But remember, it's not easy doing both of them together, right? But having said that, I know personally many students जो 5 साल LLB, they are doing it from a top NLU and they are pursuing their CSCA and they are managing to crack it. So अगर आप midnight all burn कर सकते हो, अगर आप बिना नींद के गुजार सकते हो, then go for it. CS plus LLB, one of the greatest combinations ever. Corporate दुनिया को तो तोड़ दोगे आप. That's what I can say. Thank you so much. So the next question is, apart from an entrance test score, what other things matter in getting admitted into a good B school? Into a good B school. Okay. Yes. See, business schools के अंदर generally it's a 2-step process. The first process, obviously, entrance examination, right? अब entrance examination के बाद most of the business schools for a bachelor's or a master's degree in management, they take you through writing ability test and or personal interviews. एक जमाना था जब ग्रुप डिस्कशन भी होता था, many of them have done away with, but अभी भी कई schools interviews and writing ability लेते हैं. So for writing ability test, obviously you need to have a good command over written English, right? Your ability to think and write. Personal interview के अंदर 2 चीजों की जरूरत होती है. One, you should have great communication skills. You should be able to talk and you should be able to talk logically. And second, you should have great knowledge about the world around you. क्योंकि business management के कई entrance exams में even if written paper के अंदर GK नहीं है, इंटरव्यू पोर्शन में इंटरव्यूअर चाहते ना चाहते हुए भी जीके को कहीं ना कहीं लेके आएगा. कोविड वायरस के बारे में कुछ पूछ लिया, या अभी रिसेंटली जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में कुछ पूछ लिया. एंड योर एकेडमिक सब्जेक्ट्स, राइट? फॉर अ फ्रेशर जिसने जस्ट 12th कंप्लीट किया है, राइट, वाज नो वर्क एक्सपीरियंस, नो कॉलेज एक्सपीरियंस, उसको तो 11th-12th के सब्जेक्ट्स भी पूछ सकते हैं. सो इंटरव्यू, कई स्टूडेंट्स आई सी रिटन पोर्शन क्रैक कर देते हैं बट इंटरव्यू पोर्शन में आके लड़खड़ा जाते हैं, बिकॉज उनको ऐसा रहता है कि इंटरव्यू की तैयारी लास्ट मोमेंट में हो जाएगी, जबकि आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन शुड बिगिन इवन बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द रिटन एग्जाम. सो कम्युनिकेशन, जनरल नॉलेज एंड ऑफ कोर्स नॉलेज ऑफ व्हाटएवर यू हैव स्टडीड इन 11th-12th, most important things other than the written test. Okay, thank you so much, sir. Another question is, digital media marketing and content writing are very upcoming fields. So yes. Is there are a lot of courses that are available, but is there a specific degree which could be done for digital media marketing and content writing? See, digital media marketing, I believe, I'm not aware of whether UGC and AICT have yet come up with something very specific to it, right? If I go back and see my mass communication things, then you get a bachelor's degree in journalism, you get a bachelor's degree in media and communication and other things. But digital marketing, as of now, I don't think is yet recognized specifically as a full-time 3-year course. You could go in for mass media. BMM, I think, is the closest you will get to it. But we are yet to get a specific nomenclature of a bachelor's in digital marketing or something like that. It could be one of your specializations, it could be one of your majors, but nomenclature-wise, it's still either a BMC, that is bachelor's in mass communication, or a BMM, which is a bachelor's in mass media.
सिर्फ डिजिटल मीडिया के लिए कोई स्पेसिफिक मास्टर्स डिग्री नहीं है. देयर कैन बी सर्टिफिकेशंस, बट बैचलर्स डिग्री स्पेसिफिकली एज ऑफ नाउ नो. Okay, and content writing also you have to go for journalism. Correct. Yes. Even for content writing, there's no specific bachelor's degree in content writing, right? You can go in for certification courses and workshops, but as a bachelor's degree, it is not yet introduced by UGC or AICTE. Okay, thank you so much. And one last question is that I want to live in India in future. So is there a foreign MBA which will be helpful if I do a foreign MBA? Foreign MBA? Yes. Okay. He wants to live in India in future. So is a foreign MBA helpful right now? Okay. See, मुझसे पूछोगे तो my one is be Indian, buy Indian, right? But the point is that if you there are some fields जहाँ पे it matters from where you get a degree. For example, law India का सीख के foreign में practice नहीं कर सकते. But for certain fields like management is universal, right? कहीं से भी आप कर लो. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मार्केटिंग के हों, एचआर के हों, ऑप्स के हों, फाइनेंस के, सेम ही रहने वाले हैं. बट हैविंग सेड दैट, जस्ट सेइंग दैट आई गॉट अ फॉरेन डिग्री इज नॉट इनफ. फॉरेन में भी आप सूडान से करते हो, कुवैत से करते हो, राइट? या आप यू डू इट फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटी इन लंडन, यूएस और यूके. दैट मेक्स अ डिफरेंस. गेटिंग अ फॉरेन डिग्री इज नॉट इनफ. फॉरेन इज अ ह्यूज स्पेस. सो आई वुड रादर से दैट there is getting a degree from an IIM is more valuable than getting, let us say, a degree from a college which is not recognized. Validity jab tak degree ki hai, it's good, but I would rather go in for a good brand. Just saying this is foreign is not enough. Foreign bhi kahan se, Stanford se kiya hai, Harvard se kiya hai, to fark padta hai. किसी XYZ local university से, community college से किया है, सिर्फ foreign का छाप, no, people are beyond that. So it matters where you do it from. Thank you so much, sir. So